Well, there was a statement and an article written by the leader of the opposition in the Rajya Sabha, Mr. Jaitley, referring to Mr. Katju, who is the chairman of the Press Council of India. प्रतिपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने, जो राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं हमारे, उन्होंने एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने चेयरमैन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के इस्तीफे की मांग की. The fact remains that Mr. Katju, who holds a constitutional post, a statutory post rather, has seemingly become a vagabond and is floating across the country and giving unsolicited, bizarre remarks and opinion about state governments. The facts have been very well positioned by Mr. Jaitley that he has a distinct bias. ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काटजू साहब उस पद पर पूरे देश के भ्रमण करते हैं और वो सब विचार व्यक्त करते हैं जो अनसॉलिसिटेड है, जिसकी आवश्यकता नहीं, और उनका पक्षपात पूरी तरह से स्थापित है. उनके बयानों से उनकी पक्षपाती रवैया पूरी तरह से स्थापित है. And somehow it has been witnessed that he prefers slurring the non-cognizant governments, mainly whether it is the JDU in Bihar, whether it is Mamata Banerjee in West Bengal, or for that matter, Mr. Narendra Modi now in Gujarat. But a fact which is not being, the main issue which is being skirted by our friends in the Congress party, that's a fact that Mr. Katju is a government appointee. ये बात हमारे कांग्रेस के मित्र जो आज बयान दे रहे हैं, ये बात सत्य है कि श्री काटजू जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के हैं, वो सरकारी नामांकन है, उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा हुई है, और उनका जो वेतन मिलता है, जो पर्क्स एंड सैलरी है, that comes from the government. And the fact also is that the accounts of the Press Council of India is also audited by the CAG. The main issue which is most important and which Mr. Jaitley has mentioned is that he occupies a quasi-judicial position. He acts as a tribunal, he gives hearing to the petitions. उनकी जो भूमिका है, उस जिस पद पर बैठे हैं उस और जहाँ से वो इस प्रकार के बयान देते हैं, वो मूलतः एक सरकारी पोजीशन है, और जो पैसे खर्च होते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में, वो सरकारी खजाने से आता है, और उसका ऑडिटिंग भी जो है वो CAG करते हैं. He holds a quasi-judicial position and gives hearings to various litigations, appeals, acts as a tribunal, hears complaints and appeals. Now, a person who is holding such a position uses that position to voice opinion. यदि आप देखें जो उद्देश्य है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में, जो जिस उद्देश्य से उनको इसकी नियुक्ति की गई है, दैट्स बेसिकली अ होल मैंडेट टू कीप द newspapers and news agencies maintain their independence, have some sort of a model code of conduct for media men, and also undertake studies which are beneficial to the media, and so forth and so on is the mandate given to the Press Council of India. Mr. Katju is absolutely free to voice his opinion. वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि किसी भी विषय पर, किसी भी संदर्भ में अपना बयान दें. वो पूरी तरह से लिख सकते हैं, एडिटोरियल लिख सकते हैं, समाचार में प्रकाशित हो सकते हैं. काटजू साहब पब्लिक भाषण दे सकते हैं, वो जा सकते हैं. अगर उनकी इच्छा हुई तो वो जंतर मंतर भी जा सकते हैं. लेकिन इससे पूर्व, ये करने से पूर्व, he has to surely relinquish his position as the chairman of the Press Council of India. और यदि
वो राजनीतिक गतिविधि में अपने विचार को लेकर जाना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र है, लेकिन उससे पूर्व ये आवश्यक है कि वो अपने पद से त्यागपत्र दे दें और स्वतंत्र रूप से जंतर मंतर तक जाए, सार्वजनिक जाए, पब्लिक भाषण करे, लेख लिखे, लेकिन इस पद पर बैठ करके जहां उन्हें जुडिशियल क्वासी जुडिशियल फंक्शंस करने हैं, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। और इस विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रतिपक्ष के नेता ने पूरी टिप्पणी की है। और हम चाहेंगे कि यदि काटजू साहब स्वतंत्र रूप से राजनीति करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें स्वतंत्र हो जाना चाहिए, अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। Much is being talked about the Augusta Westland helicopter deal, which is another monumental scam, as we have said, which a deal worth 3,600 crores and a kickback of 362 crores has taken place. Well, the CEO of that company, which is an Italian company, has been charged. He has been prosecuted. Facts have emerged in the Italian court. But here we find Mr. Antony giving several orders, issuing public statements and his statements in the PIB. And it seems that Mr. Antony is struggling to keep his so-called Mr. Clean image on the forefront. He's desperate, he's ordering inquiries and saying cancellation and so forth and so on. But the fact remains that Mr. Antony has been in government since 24th October 2006 as the defense minister. इस बात बिल्कुल सत्य है कि 24 अक्टूबर 2006 से श्री एंटोनी देश के रक्षा मंत्री रहे हैं। और यह भी सच है कि इस तथ्य जो इटली के कोर्ट में प्रोसिक्यूटर्स ने दर्ज किया है, उसमें रिश्वत देने की बात लगभग 360 करोड़ की चर्चा की गई है। और यह भी बात सच है कि ये सौदा जो हुआ, इसमें रिश्वत भारत में भी लोगों को दिया गया है। और जब इस सवाल को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने 12 दिसंबर 2012 को सदन में उठाया था, तो वर्तमान सरकार और वर्तमान मंत्री ने, जो डिफेंस के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी चर्चाएं इटालियन अखबारों में हैं, इटली में हैं, and there are reports in the media about such a scam. They also admitted that the Italian prosecutors are conducting the probe. सरकार ने सदन के पटल पर यह भी कहा कि इटली के जो अभियोजक हैं वो इसमें छानबीन कर रहे हैं। और सबसे हास्यास्पद स्थिति यह है कि इस ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में जो वीआईपी हेलीकॉप्टर भारत में सुरक्षा के दृष्टिकोण से खरीदा जाना था, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का यह मानना है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है और ये चर्चाओं के आधार पर भारत में कोई सबूत नहीं है। और देश की सरकार ने इस सौदे पर क्लीन चिट दे दिया था। और आज श्री एंटोनी और सरकार they are in a hurry. They want to cancel the deal. They have possibly moved a notice to cancel the deal. But the fact remains that they are guilty. The fact remains that the government is guilty. And still so far, no fact has emerged as who are the beneficiaries of this kickback. PIB में डिफेंस मंत्रालय ने PIB पर जो अपने क्रोनोलॉजी दिया इस पूरे घटनाक्रम का, उसमें जो नवंबर 2012 में एक पूरा क्रोनोलॉजी जो आया आज से 4 दिन 14 फरवरी को, उसमें जो पॉइंट संख्या 32 है, द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज गिवन फैक्ट्स about the entire chronology of the helicopter deal. And in point 32,
which is a reference from the Directorate of Income Tax. They have mentioned specifically that there is involvement of middlemen, and they have asked the Ministry of Defense to respond. उनके स्वयं का जो विवरण है उसमें उन्होंने खुद कहा है कि डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स ने छानबीन की है, उन्होंने पूछताछ की है कि इस सौदे में बिचौलियों को पैसे दिए गए, और इस तथ्य को स्वीकार करने के बाद भी आज सरकार यह जानना चाह रही है कि इसमें किकबैक या इसमें रिश्वत किससे मिला है। भारतीय जनता पार्टी यह जानना चाहेगी कि जो तथ्य सामने आ रहे हैं, इसमें रियल एस्टेट के लोगों का नाम आ रहा है, जिसमें यह कंपनी के कुछ लोग जुड़े हुए हैं। इसमें इस पूरे घोटाले में एक पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के यूपीए सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री के परिवार के सदस्यों का नाम आ रहा है। यहां तक कि कांग्रेस के वरिष्ठ स्थान पर बैठे हुए उपाध्यक्ष के निजी सचिव का भी नाम इसमें आ रहा है। कई सारे लोगों का नाम आ रहा है। हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह जानना चाहेंगे कि आखिर यह पूरा राज क्या है, तथ्य क्या है, और यह रिश्वत किसको दिया गया, कहां गया। देश ऐसे भी पहले भी काले धन और रिश्वत के मामले में कई घटनाएं, चाहे वो 2G का मामला हो, कोलगेट हो, इसमें देखा गया है। और फिर से एक बार सरकार के सामने बोफोर्स से भी बड़ा घोटाला देश के सामने आया है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह सवाल उठाए। हम निश्चित तौर से पार्लियामेंट के भीतर इस सवाल को बड़े पैमाने पर उठाएंगे, और मैं ऐसा मानता हूं कि देश के लोग भी इस बड़े हेलीकॉप्टर डील में, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए घूस में दिए गए हैं, उसके सवाल का जवाब देश के लोग जानना चाहेंगे। हमने मांग की है, हमने जांच की मांग की है, उच्चतम न्यायालय के सुपरविजन में सीबीआई की जांच की मांग की है, लेकिन देश के सबसे बड़े स्थान पर हम पार्लियामेंट में इस सवाल का जवाब कांग्रेस से चाहेंगे। Regarding, some people had asked me about Mr. Jaitley's, there was the facts and someone who were trying to ascertain his calls. We are waiting for the outcome of investigations. Arrests have been made, but it could be a sinister and a larger conspiracy. We would like the entire facts to come out. The revelation should be there that what was the intent and motive, why was this larger conspiracy hatched to acquire phone details, and so it's a matter of concern for us. It's a matter related to the leader of the opposition in the Rajya Sabha, who is one of the topmost leaders in the country today. But we shall wait for the outcome of the investigations, and I'm sure the larger conspiracy, the larger political conspiracy would unravel itself. We are hopeful about it.